Good morning, dear student. Welcome in this video. I am going to elaborate a short story named Hearts and Hand, written by O. Henry. This is the pen name of William Sidney Potter. Actually, this was the original name, William Sidney Potter, and in literature he is well known as O. Henry. He is very much prolific writer. He has written a lot of short stories, a lot of novels, a lot of essays. His stories is basically has or you can say the climax of the stories is very much suspensive. Okay, and though I have told you that very much suspensive the stories of O. Henry, the Hearts and Hand is also the climax of this story is also very much suspensive. Okay, um, we are not just going to spend more time and let's start with the very first page number 69. Okay, whenever there was influx, that means bulk, you can say crowd and mob. At Denver, there was influx of passenger into the coach on the eastbound B&M Express. in this line, the narrator has elaborated about a station named Denver. There was a lot of passenger. इस लाइन में नैरेटर ने ये बताया है डेनेवर स्टेशन का जिक्र किया है जहां पे बहुत सारे पैसेंजर्स की भीड़ लगी है. वहां पे एक ट्रेन लगी हुई है जिसका नाम है B&M एक्सप्रेस एंड ये ईस्ट की तरफ बाउंडेड है. दैट मीन्स ईस्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन है. इन one coach there shot a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comforts of an experienced traveler. उसी ट्रेन के अंदर में एक बहुत ही एलिगेंट टेस्ट की महिला बैठी हुई है, बहुत ही विजडमफुल यू कैन से, बहुत ही ज़्यादा इन सिंपल वर्ड यू कैन से बहुत ही अच्छी महिला एक बैठी हुई है जो काफ़ी खूबसूरत भी है. उसी ट्रेन के अंदर में वो जर्नी कर रही है ईस्ट की तरफ और अपने आसपास में एक एक्सपीरियंस ट्रेवलर के समान बहुत सारा सामान लेके बैठी हुई है. Among the newcomer were two men. उस ट्रेन में बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं. उस ट्रेन के अंदर में दो नए लोग चढ़ते हैं. And among the newcomer were two young men, one of handsome presence with a bold, frank countenance and manner, the other a ruffled, gloom face, heavily built and roughly dressed. यहाँ पे दो लोगों का जिक्र किया गया है जहां पे एक जो है बहुत ही हैंडसम अपीयरेंस का है और दूसरा जो है काफी बोल्ड है. सॉरी, पहला जो है काफी बोल्ड है, बहुत ज्यादा दूसरे से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाता है, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर का है. और दूसरा जो है वो रफली बिल्ट है, रफली ड्रेस्ड है, उसका ड्रेस सेंस भी उतना अच्छा नहीं है. As they pass down the ashel that means passage. यू कैन से जब दो बॉगी को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता होता है जहां से लोग आते जाते हैं, दैट इज एशल. As they passed down the ashel of the coach, the only vacant seat offered was a reserve one faced the attractive young woman. और वहां पे जो है ये लोग जब सीट ढूंढने के क्रम में जाते हैं तो रिजर्व जो सीट रहता है उसी महिला के सामने वाला सीट रिजर्व रहता है. Here the linked couple, linked that means they both were handcuffed. Okay, handcuffed that means दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है. वहां पे ये सीट वैकेंट देखते हैं, वहां पे ये जाके बैठ जाते हैं. The young woman glance fell upon them with a distant swift disinterest. वो गर्ल जो है जब वो लोग आ रहे होते हैं तो उस समय इनकी तरफ देखती है लेकिन उसके मन में बहुत ज्यादा सवाल नहीं रहता. मतलब कि कैसे अननोन स्ट्रेंजर्स को हम लोग देखते हैं वैसा इसका बिहेवियर रहता है. लेकिन तुरंत ही इसका जो कलर है, यू कैन से हियर द लाइंस हैज बीन गिवन. The line has been given here. The young woman glance fell upon them with a distinct swift disinterest. Then, with a lovely smile brightening her countenance and a tender pink tinging her rounded cheeks. मतलब वो कुछ देर के बाद शायद उस दोनों में से आए हुए किसी इंसान को पहचानती है. इस वजह से इसके चेहरे पे जो है एक ग्लो आ जाता है. And she held out a great gloved hand and she just took out his hand to for a handshake. Okay, हाथ मिलाने के लिए वो ग्लव पहना हुआ हाथ जो है वो आगे की तरफ करती है. When she spoke, her voice, full, sweet and elaborate, proclaimed that its owner was accustomed to speak and be heard. यहाँ पे वो इस तरीके से बोलती है कि शायद वो बहुत ज्यादा फैमिलियर है उस दो लोग जो आए हैं उसमें किसी एक से या फिर दोनों से.
वेल मिस्टर ईस्टन, इफ यू विल मेक मी स्पीक फास्ट। यहाँ पे वो पहला कन्वर्सेशन मेक करती है जहां पे दो लोग जो है उसमें से एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जहां पे मिस्टर ईस्टन का जिक्र किया गया। मिस्टर ईस्टन, इफ यू विल मेक मी स्पीक फास्ट, अगर आप उनको बोलने की इजाजत दें, आई सपोज आई मस्ट, तो हम कहीं ना कहीं अपने बारे में बता देंगे, एंड देन यू विल इजीली रिकॉग्नाइज मी। After that, don't you ever recognize old friends when you meet them in the West? शायद आप पुराने दोस्तों को नहीं पहचान पाते हैं जो कभी वेस्ट पार्ट में मिला करते थे। The young man rose himself sharply at the sound of her voice, seemed to struggle with a slight embarrassment, which he threw off instantly. यहाँ पे अब नेचुरल सी बात है, अगर आप ही अपने किसी फ्रेंड के साथ मिल रहे हो, बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हो, और वो एक क्रिमिनल के तौर पे आप उससे मिल रहे हो, आपको पता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन वो एक क्रिमिनल बन चुका है, तो कहीं ना कहीं आप गिल्ट फील करोगे। सिमिलर चीज हो रही है वहां पे। वो लड़की जो है वहां पे बैठी हुई है और जैसे ही वो रिकॉग्नाइज कर लेता है तो यहाँ तो मिस्टर ईस्टन हैंडकफ्ड है, मतलब वो कहीं ना कहीं कैद हो चुका है, उसको सजा हो चुकी है। लेवनवर्थ प्रिजन का नाम भी इसमें दिया गया है जहां पे ये जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगलिंग, दैट मीन्स कि वो जो है ना अपने अंदर में जो एम्बैरेसमेंट आ रहा है उसको देखे कि वो हमको पहचान गई, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, तो कहीं ना कहीं इस स्लाइट एम्बैरेसमेंट को वो दूर हटाने की कोशिश करता है। एंड मिस्टर ईस्टन बहुत अच्छे से ये कर भी लेता है। एंड देन क्लैप्स देयर फिंगर्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, और वो लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ा देता है। इट्स मिस फेयरचाइल्ड, ही सेड विद अ स्माइल, और वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज तो चूंकि पहले भी वो कर गया रहता है, और वो यहाँ पे बोलता है विद अ स्माइल, ओ मिस फेयरचाइल्ड, आई शैल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड। ये यहाँ पे बोलता है क्या कि हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आप अपना दूसरा हाथ हमको दीजिए, बिकॉज माई राइट हैंड इज एंगेज्ड विद समवन, इट्स अदरवाइज एंगेज जस्ट एट प्रेजेंट। अभी के समय मेरा हाथ जो है वो एंगेज है। He slightly raised his hands bound at the wrist by the shining bracelet. Shining bracelet is handcuff, हथकड़ी जिसको बोला गया। To the left one of the companion, वहां पे वो अपना राइट हैंड हल्का सा रेज करता है जिससे वो शाइनी ब्रेसलेट, दैट मीन्स हैंडकफ या हथकड़ी जो है वो क्लियर तौर पे विजिबल हो जाती है, जो दूसरे इंसान के लेफ्ट हैंड के साथ हैंडकफ बाउंडेड रहता है। The glad look in the girl's eyes slowly changed to a bewildered. Bewildered, that means confused. Okay, bewildered horror. जो लड़की का eyes रहता है, वो जैसे ही वो हैंडकफ को प्रत्यक्ष तौर पे देखती है, तो उसका जो चेहरा रहता है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती है कि वो जिससे हम बात कर रहे हैं वो एक क्रिमिनल तो नहीं है। The glow faded from her cheek. जो ग्लो आया था उसके चेहरे पे मिस्टर ईस्टन को देखने के बाद वो भी फेड कर जाता है। Her lips parted in vacuum. वो वंडरियस व्यू में उसके जो लिप्स रहते हैं वो पार्टेड रह जाते हैं। जो रिलैक्सिंग कंडीशन रहता है वो डिस्ट्रेस्ड अवस्था में बदल जाता है। ईस्टन विद अ लिटिल लाफ एज इफ अम्यूज्ड वाज अबाउट टू स्पीक अगेन व्हेन द अदर फोर स्टॉल्ड हिम। मिस्टर ईस्टन कुछ बोले उससे पहले जो उसके बगल में बैठा हुआ कंपेनियन रहता है वो इंस्टॉल्ड हो जाता है, वो यहाँ पे बोलने की कोशिश करता है। द ग्लूम फेस मैन हैड बीन वाचिंग द गर्ल्स acquaintances with a veiled glance from his keen shrewd eyes. कहीं ना कहीं मिस्टर ईस्टन उस गर्ल की जो स्थिति रहती है उसको वो इंसान, जो ग्लूमी फेस वाला इंसान रहता है, जो मिस्टर ईस्टन के साथ बाउंडेड रहता है, वो ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से शायद वो बोल देता है, you will excuse me for speaking, miss. यहाँ पे वो इंटरप्ट करता है और खुद से बोलना शुरू कर देता है। I see you are acquainted with a marshal here. I see that you are engaged with a marshal here. वो यहाँ पे मार्शल शब्द का यूज करता है। मार्शल एक पोस्ट हो गया, एक जैसे इंस्पेक्टर हो गया या फिर सब इंस्पेक्टर हो गया, उसी तरीके का एक पोस्ट हो गया। ओके, if you will ask me to speak a word for me when you get a pen, he will do it and it will make things easier for me. He was actually want favor, and so he was saying all these things. He is taking me to the Leavenworth prison. यहाँ पे वो क्लियर कर देता है कि ये हमको Leavenworth prison में लेके जा रहा है। It's 7 years for counterfeiting. इसको 7 साल की ऑलरेडी सजा हो चुकी है। Oh, said the girl with a deep breathing and returning color. और जब ये बात सुनती है वो गर्ल, तो उसका जो चेहरे का कलर था जो फेड हो गया था फिर से दोबारा रिकवर हो जाता है। So that in what you are doing out here, Marshal. Oh, you are doing your job out here, Marshal. This means that.
माय डियर फेयर चाइल्ड सेड ईस्टर्न कामली। यहाँ पे ईस्टर्न जो है जब सारी चीजें जान लेता है, ईस्टर्न जब ये बात सुन लेता है ग्लूमी फेस का, तो वो थोड़ा रिलैक्स होकर बोलता है, ओ माय डियर फेयर चाइल्ड, आई हैड टू डू समथिंग। हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना था, और पैसा कमाने, मतलब इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसा तो कमाना ही था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है हम क्राउड से बाहर निकले, मतलब कि कहीं ना कहीं वेस्ट पार्ट को छोड़ के हम ईस्ट पार्ट में चले आए। आई शॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट एंड वेल मार्शल इज इन अ क्वाइट हाई पोजीशन। वेस्ट पार्ट के अंदर में मार्शल जो है वो बहुत अच्छा पोस्ट नहीं होता है एज दैट ऑफ एम्बेसडर, जैसा कि एम्बेसडर का होता है। एम्बेसडर अलग अलग देशों में भी होता है, जैसे राजदूत या दूतावास जिसको बोला जाता है। तो ये एम्बेसडर का काम, एम्बेसडर का जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है कहाँ पे, तो वेस्ट पार्ट के अंदर में। ओके डियर स्टूडेंट, दिस पेज नंबर 70 एंड पैराग्राफ नंबर 4th. In my next video, I will resume from page number 70, paragraph number 5th. Okay, thank you.